Welcome to this second session of pay fixation in central government. Those who have not watched the first session video, they are requested to watch this. ये YouTube पे available है and this is essential for the purpose of maintaining the continuity, and many of the techniques I have explained in the first session I will be utilizing here. So if you are not thorough in that, you may face difficulty in attending this session properly. When I uploaded the first session, I received a number of calls and email. At the same time, a few comments was also on the YouTube channel that the participant wants much elaborated discussion on pay fixation from the date of next increment. So I'm starting with that portion, pay fixation on the date of next increment. And after that, I will be covering pay fixation on technical resignation, deputation and foreign service, and in pro forma promotion. So this much portion I will be covering today. Pay fixation from the date of next increment, ये FR 22(1)B के अंतर्गत आता है. And if a person opts for pay fixation from the date of next increment, he starts working on the new post from the effective date of order, whatever the date was mentioned or is mentioned in the order, he starts working. And this is not from the date of next increment, but between such effective date and date of next increment, his pay in the earlier post is provisionally fixed. Here important point is provisionally fixed at the corresponding stage, having the same pay in the new pay level if such a stage exists. कहने का मतलब है कि from the effective date to DNI, what he was getting in old pay level, that is fixed in the new pay level exactly on the same amount, यदि कोई वैसा स्टेज एग्जिस्ट करता है न्यू पे लेवल पे. लेकिन डिफिकल्टी वहां आती है इफ सच स्टेज डज नॉट एग्जिस्ट. In that case, two situations arise. Whether the responsibility of the new post is higher or it is not higher. यानी responsibility सेम भी हो सकती है और लोअर भी हो सकती है. If the responsibility is higher, he is placed on the stage just higher than the point where his pay is falling. For an example, suppose कीजिए कि old pay level में the person was drawing 60,000 rupees. New pay level में दो stages जो हैं वो 58,000 and 61,000. यदि responsibility higher है, in that case, sorry, this is 61,000 rupees. In that case, his pay will be fixed 60,000 rupees. इन दोनों के बीच में न्यू लेवल में आ रहा था, ये ओल्ड लेवल था. So in this case, his pay will be placed on 61,000 rupees on the higher stage, just higher than the amount matching. मैच उसका कर रहा था यहाँ पे, उससे हायर वाला जो है उस स्टेज पे प्लेस हो जाता है. लेकिन यदि रेस्पॉन्सिबिलिटी हायर नहीं है, इन दैट केस his basic pay will be 58,000 rupees plus यहां जो डिफरेंस 2,000 का आ रहा है, ये 2,000 का डिफरेंस पर्सनल पे के रूप में प्रोटेक्ट हो जाएगा. तो कहने का मतलब है, मैंने पे प्रोटेक्शन के दो तरीके बताए थे ओल्ड सेशन में, इन द शेप ऑफ पर्सनल पे और बाय प्लेसिंग हिम टू द नेक्स्ट हायर स्टेज. सो उन दोनों में जो भी एप्लीकेबल होगा वो लग जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज हायर और सेम और लो. ठीक है. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान देना होता है कि ये ऑप्शन 1 महीने के अंदर एक्सरसाइज करना पड़ता है. एंड इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए इट इज नॉट मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफिस टू आस्क टू द पर्सन को अपने ही तो मोटो पर ये जानकारी देनी होती है, ऑप्शन एक्सरसाइज करना होता है. ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड द ऑफिस में आस्क, बट इट इज नॉट मैंडेटरी ऑन हिज पार्ट.
अब ऑन द डेट ऑफ डीएनआई क्या होता है, ये तो हुआ इन बिटवीन, यानी कि इफेक्टिव डेट से डीएनआई के बीच में, ये डीएनआई का डेट था, ये इफेक्टिव डेट था, ठीक है, डीएनआई का डेट था। इसके बाद क्या होगा, व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस? सो ऑन डीएनआई द पर्सन विल गेट वन इंक्रीमेंट इन द ओल्ड पे लेवल एंड नोशनल इंक्रीमेंट ही विल गेट ही इफ इट इज एप्लीकेबल। कहने का मतलब है अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर है तो नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगर एप्लीकेबल है तो उसको ओल्ड पे नोशनल इंक्रीमेंट, एक तो उसको डीएनआई का इंक्रीमेंट मिल जाएगा, दूसरा उसको नोशनल इंक्रीमेंट मिल जाएगा अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर है, नहीं है तो नोशनल नहीं मिलेगा। एंड व्हाट एवर द पे कम्स आउट टू बी, उसको फिर हायर लेवल पे यानी न्यू लेवल पे ले जाकर के फिक्स कर देंगे। हायर लेवल कहना ये एसेंशियल नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, न्यू लेवल पे ले जाकर के जो भी अप्रोप्रिएट होगा वहां पे फिक्स कर देंगे। इन दिस फिक्सेशन ऑल्सो, ये दोनों प्रोविजन कि वो पर्सनल पे के रूप में फिक्स होगा या हायर स्टेज पे फिक्स होगा, ये डिसाइड करना होगा एंड उसका पे वहां ले जाकर के प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली ये ऑप्शन कब एक्सरसाइज किया जाता है, जब ओल्ड स्टेज के पे में दो इंक्रीमेंट ऐड करने के बाद जो अमाउंट आ रहा है उसका कोई मैचिंग स्टेज नहीं है न्यू पे लेवल पे। ओल्ड पे लेवल में दो इंक्रीमेंट ऐड किया, जो भी अमाउंट आया अगर उसका मैचिंग है देन दिस इज नॉट अट्रैक्टिव, दिस वुड नॉट बी एक्सरसाइज। अब हम एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल के बाद ये क्लियर हो जाएगा। ये पे मैट्रिक्स, बिकॉज वी विल बी यूजिंग दिस, दैट्स व्हाई I have pasted this in the presentation. A person drawing pay in the pay level 8, stage 6 is placed in the pay level 9 on this date. He opts his pay fixation on his DNI falling on this date. Fix his pay in pay level 9 on his DNI if the responsibility is not higher, responsibility on new post is not higher, if the responsibility is higher. In the first case, because the responsibility is not higher, his pay will be fixed as FY 22-1A1, A2, sorry, A2. DNI का ऑप्शन उसने एक्सरसाइज किया है, चूंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी हायर नहीं है इसलिए उसको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिले। तो सबसे पहले हम देखें कि इफेक्टिव डेट से इंक्रीमेंट के डेट के बीच में क्या होगा। सो इफेक्टिव डेट से इंक्रीमेंट के डेट में उसका जो पे था स्टेज 8 पे 6 पे, this will be simply protected, and this will be protected by placing him in a matching stage in pay level 9। जैसे कि अगर ये पे लेवल 9 में, ये पे लेवल 9 है, पे लेवल 9 में दो स्टेजेस हैं, एक स्टेज ए एक स्टेज ए, अगर ये इन बिटवीन यहां आ रहा है समवेयर, then his pay will be fixed at this level and the difference will be protected in the shape of personal pay because the responsibility is not high. So इसको जब हम टेबल में देखेंगे तो दिस लेवल, ये जिस लेवल पे हम फिक्स कर रहे हैं वो बेसिकली ये है, आप इसको टेबल में देखना चाहें तो देख सकते हैं। एंड द डिफरेंस ऑफ दिस and this which comes out to be 500 rupees, this 500 rupees is being protected in the shape of personal pay के रूप में इसको प्रोटेक्ट कर दे रहे हैं। then what will happen on DNI को क्या होगा? so let's see, DNI को सिंपली एक इंक्रीमेंट उसके ओल्ड पे में ऐड करेंगे हम, एक इंक्रीमेंट हमने ऐड किया DNI को, नोशनल इंक्रीमेंट उस पर एप्लीकेबल नहीं है, एंड अगेन बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर नहीं है, हायर लेवल पे उसके पे को जैसे हमने यहां पे डिसाइड किया था ऑन अ सिमिलर पैटर्न, हायर लेवल पे उसके पे को हम पर्सनल पे के शेप में प्रोटेक्ट कर देंगे। तो हायर पे में ये जो करस्पॉन्डिंग आएगा जब आप टेबल में देखेंगे तो ये लेवल होगा, एंड दिस टाइम इज समवेयर हियर, ठीक है। सो इन बिटवीन का जो पोर्शन है ये पर्सनल पे यानी 600 के रूप में यहाँ पे प्रोटेक्ट हो रहा है, एंड दिस अमाउंट इज 56,000, दिस अमाउंट इज 56,300 रुपीज, 56,300 रुपीज।
So the difference is being protected in the shape of personal pay 600 rupees. एक और इंक्रीमेंट के बाद क्या होगा? अब देखें 1 जुलाई को तो उसको ये इंक्रीमेंट लग गया, उसके बाद 1 जुलाई को उसका पे फिक्स हुआ, नेक्स्ट डीएनआई उसका 1 जनवरी 24 था। अब 1 जनवरी 24 को क्या होगा? इसके 6 मंथ्स के बाद क्या होगा? तो इसके 6 मंथ्स के बाद उसका पे हो जाएगा 58,000 रुपीज, यानी स्टेज 3 से वो स्टेज 4 में एक इंक्रीमेंट लेके आ जाएगा। एंड बिकॉज दिस 58,000 rupees is more than what he was drawing in the old pay level, that is 56,900 rupees. So यहाँ पर्सनल पे के रूप में कुछ भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, and his pay will be fixed at this level, at this stage. Stage number 4, 58,000 rupees in pay level 9. Date of next increment 1 साल इसके बाद, that will be 1 जनवरी 25. यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट इंक्रीमेंट जो लग रहा है उसका डीएनआई जो है 6 मंथ के बाद है, इसके 6 मंथ के बाद है, क्योंकि फर्स्ट इंक्रीमेंट 6 मंथ के बाद लगता है, उसके बाद नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1 साल के बाद लगता है। नेक्स्ट अगर इसी में सेकेंड हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी होता तो क्या करते? अगर हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी होता तो सबसे पहले उसका जो ये पे था पर्सनल पे के रूप में नहीं प्रोटेक्ट होता, सिंपल प्रोटेक्ट हो जाता। कहने का मतलब अगर ये 2 लेवल है और ये अगर यहाँ पे है तो ये जो पे उसका फिक्स होगा इन बिटवीन वो हायर पे होगा, तो ये ले जाकर के हमने हायर पे उसका पे फिक्स कर दिया। कब इफेक्टिव डेट से, ये इफेक्टिव डेट से इंक्रीमेंट डेट पर। आइए इसको हम एक बार टेबल में देख लें, दिस विल बी मच क्लियर। 55,200 रुपीज को हमको पे लेवल 9 में देखना है। 55,200 रुपीज विल कम्स आउट टू बी हियर इन दोनों के बीच में, बिकॉज यहाँ हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो 56,300 रुपीज पे उसका हम फिक्स कर रहे हैं, कोई पर्सनल पे नहीं है। अब डीएनआई को उसको एक इंक्रीमेंट यहां दे दिया, डीएनआई का हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक इंक्रीमेंट और दे दिया, और ये 2 इंक्रीमेंट देने के बाद 58,600 रुपीज को अगेन हम उस टेबल में देख रहे हैं। 58,600 रुपीज, 58,600 रुपीज, तो 58,600 रुपीज विल बी इन बिटवीन द टू, एंड इसमें जो हायर है वहां पे जाके उसका पे फिक्स हो जाएगा 59,700 रुपीज। सो अगेन दिस कम्स आउट टू बी 59,700 रुपीज। कोई पर्सनल पे वगैरह का कोई यहाँ पे सवाल नहीं है। सो इस तरह से डीएनआई का पे फिक्सेशन होता है। ये एक और एग्जांपल मैंने दिया हुआ है। इस एग्जांपल में गवर्नमेंट सर्वेंट इतना पे ड्रॉ कर रहा है, पे लेवल 10 में, पे लेवल 11 में जा रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली हायर है। इस हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसका डीएनआई ये है, डेट ऑफ प्रमोशन ये है, या डेट ऑफ गोइंग टू द नेक्स्ट पोस्ट, हायर न्यू पोस्ट 6 जून है। उसने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया है और ऑप्शन एक्सरसाइज किया है, दो कंडीशंस में उसका पे फिक्स करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां की वो आदमी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर रहा है तो डीएनआई केवल नहीं है, और हायर स्टेज में जा रहा है, सो हिज पे विल बी फिक्स एज FR 22(1)(A)(1). रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर है, डीएनआई वो एक्सरसाइज उसने नहीं किया है, क्योंकि डीएनआई एक्सरसाइज नहीं किया इसलिए वो कॉलम नहीं है। पे लेवल 10 में बिफोर प्रमोशन ही वाज ड्रॉइंग दिस मच, एक नोशनल इंक्रीमेंट दिया। नोशनल इंक्रीमेंट देने के बाद 77,700 रुपीज को पे लेवल 11 में हम देख रहे हैं। 77,700 इन बिटवीन टू, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर है, तो 78,500 रुपीज पे उसका पे फिक्स हो जाएगा। 78,500 रुपीज पे। एंड डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट उसका जिस दिन, चूंकि डीएनआई उसने नहीं एक्सरसाइज किया है, तो 6 जून को यह फिक्सेशन हुआ। 6 मंथ्स के बाद 1 जनवरी को उसका नेक्स्ट डीएनआई 1 जनवरी 2024 को फिक्स हुआ, यानी कि 6 जून में 6 मंथ जब हमने ऐड किया तो 5 दिसंबर आ रहा था, उसका जो नेक्स्ट आया 1 जनवरी आया, 1 जनवरी को हमने उसका पे फिक्स किया। अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज करता तो क्या होता? ऑप्शन अगर वो एक्सरसाइज करता तो इन बिटवीन हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के कारण यहाँ पे कोई भी
आप देख लीजिए, इन बिटवीन यहाँ पे जो फिक्सेशन होगा उसका ये 75,400 रुपीज को हम हायर पे ले जाकर के फिक्स करेंगे, पे लेवल 11 पे। अगेन यहाँ पे हायर पे फिक्स करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी चूंकि हायर है, सो इस लोअर पे नहीं डाल करके दिस विल फॉल समवेयर हियर, एंड ये हायर वाला लेवल हम यहाँ पे फिक्स करेंगे ले जाकर के 75,400 रुपीज को। 11 में देखें 75,400 रुपीज, 75,400 रुपीज विल फॉल समवेयर हियर, तो 76,200 रुपीज पे उसका हम पे फिक्स कर रहे हैं, 76,200 रुपीज पे। डीएनआई को एक इंक्रीमेंट उसको दे दिया, नोशनल इंक्रीमेंट बिकॉज हाई रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मिल गया, एंड इसको फिर ले जाकर के हमने प्रोटेक्ट कर दिया 80,000 रुपीज को। 80,000 रुपीज का हम क्रॉसपॉन्डिंग देख लें क्या है। 80,000 रुपीज का क्रॉसपॉन्डिंग 80,900 रुपीज होगा, बिकॉज 80,000 रुपीज विल फॉल समवेयर हियर, रेस्पॉन्सिबिलिटी इज हायर, so his pay will be fixed at 80,900 rupees. So it will be 80,900 rupees. 80,900 rupees. Date of next increment. Date of next increment. डीएनआई को जब उसका पे फिक्स हुआ उसके 6 महीने के बाद उसको नेक्स्ट इंक्रीमेंट मिल जाएगा यहाँ पे। सो हिज डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट विल बी आफ्टर 6 मंथ। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देने लायक है, यहाँ डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1 जुलाई हो रहा है, जबकि इससे पहले वाले प्रॉब्लम में ये 1 जनवरी हो रहा है। इससे पहले वाले ऑप्ट में 1 जनवरी हो रहा है। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर वो डीएनआई ऑप्ट कर रहा है तो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट उसका चेंज हो रहा है। एक नया ये देखते हैं, टेक्निकल रेजिग्नेशन। What is technical resignation? Suppose a person working in organization A want to move to organization B. एक पोस्ट एडवर्टाइज हुआ ऑर्गेनाइजेशन बी में, वो ए से जानना चाहता है। He has his lien with organization A and through proper channel he applied, he is selected and he wants to move to organization B. उसका लियन जो है ऑर्गेनाइजेशन ए में है। अब उसके पास 2 सिचुएशन है, या तो वो अपना लियन ऑर्गेनाइजेशन ए में ही रहने दे एंड बी में जाकर के काम करे। इन दैट केस उसका जितना भी बेनिफिट्स है पोस्ट रिटायरमेंट वाला, उसका सारा कंट्रीब्यूशन बी से ए में आता रहे। लियन के बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जिन्होंने मेरा लास्ट सेशन नहीं देखा है, वंस अगेन रिक्वेस्टेड कि यूट्यूब पे जाकर के उस सेशन को देख लें, बिकॉज दैट इज a lot of terminologies have been explained, a lot of concept have been explained, जिसको कि मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। Lien is one of that. Lien is title on a particular post of a person. So वो टाइटल को वो यहाँ मेंटेन करते हुए वो जा सकता है। अगर पोस्ट एब्जॉर्प्शन का है, बी में उसको एब्जॉर्ब हो जाना है, तो लियन भी ट्रांसफर हो जाएगा। गौर करने वाली बात है, अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो लियन ट्रांसफर होगा। इस केस में इसका कोई कंट्रीब्यूशन इधर नहीं आएगा, वो यही मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। लिव सैलरी पेंशन कंट्रीब्यूशन है या और भी कोई दूसरा कंट्रीब्यूशन है, मेडिकल इंश्योरेंस हो सकता है या दूसरा और जो भी होगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली यहाँ मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि लियन वो यहाँ मेंटेन करता है तो ये लियन 2+1 ईयर के लिए होता है। 1 साल ही नॉर्मल केस, 1 साल रिलैक्सेशन मिलता है 3 इयर्स के लिए, एंड 3 इयर्स तक कोई लियन यहाँ रख सकता है। 3 इयर्स के दौरान एनी टाइम यहां से सर्विस छोड़ करके वो बैक आ सकता है। तो देखिए, चाहे वो यहां से यहां जा रहा हो, यहां से यहां आ रहा, इन बोथ केसेस द पर्सन हैव टू लीव वन ऑर्गेनाइजेशन and the person have to leave the organization because he cannot be part of 2 establishment. जैसे यहाँ लियन रखते हुए यहाँ जा रहा है, यहाँ से टोटल रिलेशन उसका ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन he cannot be part of establishment A and B together. That's why he have to resign at one place on technical ground, on technical ground, and that's why this resignation is called technical resignation. क्लियर है? बिकॉज उसका लियन एक ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन हो रहा है, उसके बावजूद वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है, तो उसको टेक्निकल ग्राउंड पे रिजाइन करना है।
एंड इस टेक्निकल ग्राउंड के रेजिग्नेशन में यही फायदा होता है कि हिज टोटल बेनिफिट्स इज ट्रांसफर्ड। सिमिलरली जब वो बैक आएगा तो अगेन उसका जो सारा का सारा बेनिफिट यहाँ पे मेंटेन हो रहा है वो उसको मिल जाए। 2 साल के बाद क्या होगा, 2+1 ईयर, 3 इयर्स के बाद क्या होगा, तो इस 3 इयर्स के बाद अगर वो बैक नहीं होता है तो सारे के सारे बेनिफिट्स इस ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर, और यहाँ उसका बेनिफिट एक्रूड रहेगा, ही विल क्लेम फ्रॉम हियर। अगर वो बैक आता है ही विल क्लेम फ्रॉम हियर। इसमें क्या होता है कि पे प्रोटेक्शन मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन ए से बी में भी जाइए तो पे प्रोटेक्शन मिलेगा। ओल्ड सर्विस विल बी काउंटेड फॉर फ्यूचर इंक्रीमेंट। यदि ऑर्गेनाइजेशन बी का पोस्ट ए के पोस्ट के इक्विवेलेंट है, सेम लेवल का पोस्ट है या लोअर लेवल का पोस्ट है, ये गौर करेंगे, तो पास्ट सर्विस वहां की यहाँ के इंक्रीमेंट के लिए काउंट होगी, इंक्रीमेंट के लिए काउंट होगी। अगर ऐसा नहीं है तो इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होगी। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब हायर लेवल पे आपका पे फिक्सेशन होता है तो लोअर लेवल पे की गई सर्विस हायर लेवल के पे फिक्सेशन के लिए कंसीडर नहीं हो सकती है। लेकिन फॉर अदर पर्पज लाइक एलटीसी, एलटीसी ओल्ड लेवल पे अगर उसने एलटीसी लिया हुआ है एक ब्लॉक में, एक उसका बाकी है, तो वो न्यू लेवल पे उसको मिलेगा। केवल इंक्रीमेंट के केस में यदि जहां वो जा रहा है वहां का पे लेवल इक्वल या लोअर नहीं है तो यहाँ इंक्रीमेंट के लिए ये पीरियड काउंट नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हायर लेवल पे भी उसने पे फिक्स करवा लिया, 8 मंथ का पीरियड ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का है, 4 मंथ काम किया और हायर लेवल पे कहा कि एक इंक्रीमेंट और दे दो, ऐसा नहीं हो सकता है। पे फिक्स करने के बाद फिर 6 मंथ्स के बाद ही अगला इंक्रीमेंट वो एक्रिव करेंगे, चाहे जो भी डेटा है, जो भी डेटा है। लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ एलटीसी एंड फॉर अदर पर्पज वो काउंट होता है, वो काउंट होता है। FR22B इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। सो डीएनआई का जो ऑप्शन है वो डीएनआई का FR22(1)B, सॉरी, सो डीएनआई का ऑप्शन यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं होता है, ठीक है। अगेन जब वो यहां से यहां बैक आएगा, बी से ए बैक आएगा, तो फिर से यहाँ की बेनिफिट्स जो है जो अर्न किए हुए रहेगा वो पूरा का पूरा यहाँ के लिए काउंट होगा, यानी एलटीसी के लिए वो पीरियड काउंट होगा, इंक्रीमेंट के लिए भी काउंट होगा। अगेन अगर ये लेवल इससे कम है या इक्वल है तो देखें एग्जांपल से इसको। A government servant drawing this much pay in pay level 10 joins another organization after technically resigning from parent organization in pay level 11 on this date. His DNI was this, fix his pay and DNI if the responsibility is higher, if the responsibility is not higher in the new post, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए 10 से 11 पे जा रहा है। एक चीज गौर कीजिएगा, 10 से 11 पे वो आदमी जा रहा है तो इन जनरल वी विल प्रिज्यूम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज हायर। सो अगर नहीं भी ये दिया हुआ होता तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर मान के ही फिक्स करते। लेकिन यदि अगर लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर नहीं, हमको कंपल्सरली मानना पड़ेगा कि पे लेवल तो चेंज हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर नहीं है। नोशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। सो इस केस में चूंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर है, पे लेवल 10 पे उसका पे इतना था, एक नोशनल इंक्रीमेंट हमने दिया, ठीक है, डीएनआई उसका सेम रहा, ठीक है, नोशनल इंक्रीमेंट दिया, डेट ऑफ प्रमोशन जो उसका था टेक्निकल रेजिग्नेशन के बाद, सॉरी डेट ऑफ प्रमोशन नहीं, टेक्निकल रेजिग्नेशन के बाद जहां उसने फिर से ज्वाइन किया 14 अक्टूबर को, वहां पे हमने इसको ले जाकर के प्रोटेक्ट कर दिया, प्लेसिंग हिम टू द हायर स्टेज। देखते हैं किया है कि नहीं। 71,100, 71,100 पे लेवल 11 में हमको देखना है। पे लेवल 11 में 71,100 रुपीज, 71,100 रुपीज विल बी समवेयर हियर। सो 71,800 रुपीज हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो चला जाएगा 71,800 रुपीज, और वहां पे जाकर के इसका पे फिक्स हो जाता है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर नहीं होता तो क्या होता, सिंपली नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा होता। एंड द सेकेंड थिंग, उसका पे पर्सनल पे के रूप में प्रोटेक्ट हो रहा होता है। मैं अगेन फिर से इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, यू ट्राई योर से, कोई डिफिकल्टी हो देन आस्क टू मी।
सिंपली इसका पे पर्सनल पे के रूप में प्रोटेक्ट हो रहा होता है, यानी कि दो लेवल जहां जहां के बीच में हायर दूसरे नेक्स्ट लेवल पे आ रहा है, वहां दो लेवल में इस लोअर वाले लेवल पे ये प्रोटेक्ट होता, एंड ये जो डिफरेंस था ये पर्सनल पे के रूप में प्रोटेक्ट होता। डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट उसी तरह से आफ्टर प्लेसिंग टू द न्यू पोस्ट, डे टू द नेक्स्ट इंक्रीमेंट, चूंकि यहाँ डीएनआई नहीं होता है, सो डेट टू नेक्स्ट इंक्रीमेंट अकॉर्डिंगली उसका डिसाइड होगा। तो ये टेक्निकल रेजिग्नेशन के केस में है, इस तरह से उसका पे फिक्सेशन टेक्निकल रेजिग्नेशन के केस में होगा। चूंकि हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसलिए FR22(1)(a)(2) में हो रहा है और डीएनआई एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट, जो बाकी पोर्शन FR22(1) के हैं वो हम जरा देख लें एक बार। FR22(2) में डेपुटेशन एंड फॉरेन सर्विस के केस में कैसे पे फिक्स होता है वो दिया हुआ है, इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे। इसमें केवल एक चीज बताऊं, डेपुटेशन एंड फॉरेन सर्विस या तो विद हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी परमिटेड है, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी के पोस्ट पे परमिटेड है, या इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे परमिटेड है, ये लोअर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे परमिटेड नहीं है। दैट्स वाई FR22(1)(a)(1) एंड A2 दोनों एप्लीकेबल है, लेकिन A3 एप्लीकेबल नहीं। सिमिलरली डेपुटेशन के केस में कोई भी पे प्रोटेक्शन नहीं दिया, सॉरी, डेपुटेशन के केस में कोई भी पे प्रोटेक्शन तो दिया ही जाएगा, बिकॉज FR22(1) एप्लीकेबल हो रहा है, लेकिन डीएनआई का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। डीएनआई का ऑप्शन नहीं दिया जाता है, डीएनआई का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। एट द सेम टाइम, जैसे मैंने टेक्निकल रेजिग्नेशन में बताया, रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि हायर है तो डीएनआई जो है उसका चेंज होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है तो डीएनआई चेंज नहीं होगा, अकॉर्डिंगली फिक्सेशन होगा। आगे की एग्जाम्पल में हम देखेंगे। अगर कोई आइडेंटिकल या सेम पे लेवल में जा रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है वहां का पे लेवल भी सेम कंटिन्यूटी में है, देन हम खुद नहीं प्रिज्यूम करेंगे कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर, ठीक है। नो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एज्यूम्ड, सेल्फ एज्यूम नहीं किया जाता है अनलेस एंड अनटिल मेंशन्ड नाउ। तो इसमें क्या होता है कि चूंकि हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है तो FR22(1)(a)(2) अप्लाइड होता है, यानी नोशनल इंक्रीमेंट की बेनिफिट नहीं मिलती है। ये यूजुअली टेनोरल पोस्ट में होता है, जैसे कि कई बार कई ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, प्रिंसिपल साइंटिस्ट एंड डायरेक्टर दोनों सेम स्केल में होते हैं। इन दैट केस यदि कोई प्रिंसिपल साइंटिस्ट टेनोर बेसिस पे डायरेक्टर बनता है तो उसका पे फिक्सेशन फिर से नहीं होता है, सेम पे ही विल बी ड्रॉइंग। बट यदि सेम लेवल पे जाने के बावजूद हम एज्यूम तो नहीं कर रहे हैं हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा हुआ है ऑर्डर में, तो उसको नेशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा, एंड इन केस में FR22(1)(a)(1) के अंदर उसका पे फिक्स होगा। उसी तरह से यदि कोई आदमी एक्स कैडर टू एक्स कैडर मूव करता है, यानी एक पेरेंट डिपार्टमेंट से एक जगह डेपुटेशन पे गया और इस जगह से दूसरी जगह डेपुटेशन पे वो चला जाता है विदाउट कमिंग टू द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इस केस में इस दूसरी जगह का पे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में पहले फिक्स किया जाता है, एंड वंस द पे इज फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू द पे इन द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द पे इन द फर्स्ट डेपुटेशनल पोस्ट। सो सबसे पहले ये फिक्सेशन हम कर देंगे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में, एंड देन वी विल प्रोटेक्ट हिज पे। तीसरा है प्रोबेशन के केस में, दैट इज FR22(b). हियर व्हाट हैपेंस कि इसका फिक्सेशन एग्जैक्टली FR22(1) के फॉर्म में होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोअर है, ये सारी चीजें देखते हुए प्रोबेशन के केस का पे पूरा का पूरा फिक्स होता है। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स अंडर FR22। अब हम जरा डेपुटेशन के केस में देख लें, डेपुटेशन एंड फॉरेन सर्विस में क्या होता है। देखिए, डेपुटेशन एंड फॉरेन सर्विस में पे दो तरीके से फिक्स होता है। फर्स्ट है इन द फॉर्म ऑफ डेपुटेशन पे, एंड सेकेंड है विद डेपुटेशन अलाउंस। ये क्या है? एक पर्सन ऑर्गेनाइजेशन ए से ऑर्गेनाइजेशन बी में जा रहा है, he is moving from organization A to organization B. He has two options of pay fixation which he have to exercise within 1 month. या तो वो बोले कि मेरा पे यहाँ पे फिक्स कर दो,
जो भी लेवल है, सेम लेवल है तो सेम लेवल पे ही कर दो, हायर है तो हायर पे कर दो, हायर है तो नोशनल इंक्रीमेंट देते हुए करोगे, डीएनआई का ऑप्शन तो है नहीं, सेम है तो सिंपल करोगे, तो इसको कहते हैं डेपुटेशन पे। या वो कहता है कि मेरे को यहाँ का पे दो और इसके ऊपर कुछ अमाउंट दे दो, जिसको कहते हैं डेपुटेशन अलाउंस। इन दैट केस वो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के पे को ही पाता रहेगा और उस पर उसको डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा। एक पॉइंट समझने वाली बात है, सपोज कीजिए ये पोस्ट लेवल 8 का था, ये पोस्ट लेवल 9 का था। सो अगर उसने डेपुटेशन पे ऑप्ट किया है तो लेवल 9 पे उसका पे फिक्स होगा। अगर उसने डेपुटेशन अलावेंस फिक्स किया है तो लेवल 8 के ही पे को वो पाता रहेगा, एंड इसके साथ साथ वो डेपुटेशन अलावेंस पाएगा, डेपुटेशन अलावेंस पाएगा। यहाँ पे डीए नहीं है, डीएनएस अलावेंस नहीं है, डेपुटेशन अलावेंस इसका मतलब है, तो डेपुटेशन अलावेंस पाएगा। सो यहाँ पे पे लेवल 8 ही उसका रहता है, यहाँ पे पे लेवल 9 हो जाता है। अब यहाँ पे दो सिचुएशन और एराइज करते हैं, यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर है तो क्या होगा, और यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर नहीं है तो क्या होगा। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर है, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो चाहे डेपुटेशन पे हो या डेपुटेशन अलावेंस हो, दोनों के केस में नोशनल इंक्रीमेंट उसको मिलेगा, दोनों के केस में नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। अब ये डेपुटेशन अलावेंस आप कहेंगे कितना होता है सर ये अमाउंट, तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। केवल यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि उसने ऑप्शन एक्सरसाइज किसका किया है और रेस्पॉन्सिबिलिटी हायर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी हायर है कि नहीं, एंड ऑप्शन उसने क्या एक्सरसाइज किया है, अकॉर्डिंगली कौन सा लगेगा वो कॉलम हम लगाएंगे और उसका पे फिक्स करेंगे। सेम थिंग मैंने यहां रिपीट किया है। डेपुटेशन पे मेथड में क्या है, अप्लाइंग दिस A1 एंड A2 बट A3 इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि डेपुटेशन लोअर पोस्ट पे नहीं हो सकता है। सिमिलरली 22(1)(b ऑप्शन फॉर फिक्सेशन ऑफ पे, वन छूट गया है, ऑप्शन फॉर फिक्सेशन ऑफ पे ऑन डीएनआई, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, डेपुटेशन अलाउंस मेथड में देखिए क्या होता है, अमाउंट ऑफ डेपुटेशन अलाउंस। अगर सेम स्टेशन पे डेपुटेशन हो रहा है, सेम स्टेशन क्या है हम आगे देखेंगे। सेम स्टेशन, अभी समझ लीजिए सेम टाउन, यदि सेम टाउन में डेपुटेशन हो रहा है तो 5% ऑफ पे, ये पे में क्या क्या इंक्लूडेड है, बेसिक पे, बेसिक पे, इसके साथ इंक्लूडेड है पर्सनल पे यदि उसको मिल रहा था ओल्ड पे, एंड एट द सेम टाइम एनपीए, एट द सेम टाइम एनपीए। सो ये तीनों इंक्लूडेड हैं, ये तीनों इंक्लूडेड हैं पे में 5%, एंड द मैक्सिमम लिमिट इज 4,500। इफ द टाउन चेंज देन इट इज 10% एंड द मैक्सिमम लिमिट इज 9,000 रुपीज। यदि डीए 50% से बढ़ जाए, दिस डीए इज डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस 50% क्रॉस हो जाएगा, then these all limits will increase by 25%. This 5 will become 6.25. This will be this much multiplied by 1.25. This will be 12.5 and this will be multiplied by 1.25. So जो लिमिट आएगी उस लिमिट पे जाकर के उसका डेपुटेशन अलाउंस फिक्स होगा। पे प्लस डेपुटेशन अलाउंस कैन नॉट बी मोर देन 2,25,000। अगर इसमें एनपीए भी ऐड कर दें, दिस कैन नॉट बी मोर देन 2,37,500। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि इस अमाउंट को क्रॉस नहीं कर सकता है एनपीए में, अब विदाउट एनपीए दिस। अब सेम स्टेशन का क्या मतलब होता है, सेम अर्बन एलोगमेरेशन, एक अर्बन लिमिट अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है, अर्बन लिमिट यहां तक एंड कर रहा है, मे बी मोर देन 1 म्युनिसिपल एरिया, तब भी वो सेम अर्बन एलोगमेरेशन काउंट होगा एंड चेंज ऑफ स्टेशन नहीं माना जाएगा। अब इसको कई बार डिक्लेयर किया जाता है, जैसे कि दिल्ली एंड सराउंडिंग में कई म्युनिसिपल एरिया हैं, लेकिन उनको सेम अर्बन एलोगमेरेशन ही कंसीडर किया जाता है, अलग स्टेशन नहीं काउंट किया जाता है, और 5% वाली लिमिट ही अप्लाई होती है। ठीक है, द ऑप्शन ऑफ पे फिक्सेशन मेथड इज टू बी एक्सरसाइज विद इन 1 मंथ। एक महीने के अंदर ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेना होता है, और एक बार एक्सरसाइज करने के बाद एवरी ईयर नहीं चेंज हो सकता है। ये चेंज कब होगा, जब ओल्ड पे लेवल में, यानी कि
जहां से वो पर्सन डेपुटेशन पे मूव किया है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में देयर विल बी स्ट्रक्चरल चेंज इन पे। स्ट्रक्चरल चेंज इन पे का मतलब है या तो फिर से पे फिक्सेशन हो, या वहां पे उसको प्रमोशन मिल जाए, जिसको हम परफॉर्मा प्रमोशन कहते हैं, बाद में देखने वाले हैं, या कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रही हो, कोई पनिशमेंट वगैरह मिल जाए। तो अगर इस तरह का कोई चीज हुआ है, या पहले से उस पर पनिशमेंट चल रहा हो, उसके बावजूद उसको डेपुटेशन दिया गया हो, अब पनिशमेंट हट गया हो, फिर से पे रिवाइज हो जाए, वो भी हो सकता है। तो इस तरह का अगर स्ट्रक्चरल चेंज होता है तो ये ऑप्शन वो फिर से एक्सरसाइज कर सकता है। यानी स्ट्रक्चरल चेंज होगा तो वहां का पे रिवाइज होगा, उसका फिर से पे फिक्सेशन होगा डेपुटेशन डिपार्टमेंट में या फॉरेन डिपार्टमेंट में, और वहां पर वो देखेगा कि इन दोनों में कौन सा ऑप्शन उसके लिए बेनिफिशियल है, ही कैन री एक्सरसाइज द ऑप्शन। तो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं इसका। A government servant drawing this much pay in pay level 10 in Delhi joins another organization on deputation in Mumbai. So Delhi से मुंबई आ रहा है, city is changing, in pay level 11 higher responsibility पे जा रहा है on this date. DNI that is this fixes pay. पहला डेपुटेशन पे के रूप में, दूसरा डेपुटेशन अलावेंस के रूप में। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं डेपुटेशन पे के रूप में उसका पे कैसे फिक्स होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर है तो A1 में हो रहा है, FR22(1)A1 में। DNI ऑप्शन वो एक्सेस नॉट एप्लीकेबल, नो नहीं लिखा हुआ है, एनए लिखा हुआ है, नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल ही नहीं है, DNI का कॉलम भी नहीं है। सो पे लेवल 10 में स्टेज 8 था, एक नोशनल इंक्रीमेंट दिया, ठीक है, उसका DNI ओल्ड DNI जो है वही है। इस डेट को वो डेपुटेशन में गया, जब डेपुटेशन में गया तो दिस 71,100 रुपीज को हमने फिर उस टेबल में देखा, और उस टेबल में देखने के बाद बिकॉज द रेस्पॉन्सिबिलिटी वाज हायर, दिस वाज समवेयर हियर, उसको हायर वाले लेवल पे यानी यहाँ पे इस मैचिंग पे ले जाकर के हमने फिक्स कर दिया। इंटरेस्टिंग पोर्शन इज कि यहाँ डेपुटेशन पे देखिए वो चूंकि हायर पे गया है इसलिए उसका DNI चेंज हो जा रहा है, इसलिए उसका DNI जो है यहां जाकर के चेंज हो जा रहा है, DNI सेम नहीं रह रहा है। यानी कि अदरवाइज इसका DNI अगर हम नेक्स्ट काउंट करते तो ये 25 आ जाता, लेकिन ये प्रमोशन उसको वहां पे मिला है, सॉरी ये DNI उसका 24 रहता, बिकॉज 23 में उसको यहाँ पे डेपुटेशन मिला है, 24 रहता, लेकिन बिकॉज हायर लेवल उसका उसने ऑप्ट किया, सॉरी हायर लेवल पे उसका हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फिक्स हुआ है नेशनल इंक्रीमेंट के साथ। सो DNI जिस दिन फिक्सेशन हुआ है उसके 6 मंथ के बाद वाला लगेगा। नेक्स्ट डेपुटेशन अलावेंस वो ऑप्ट कर रहा है, अगर डेपुटेशन अलावेंस ऑप्ट कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर है, यस है, डेपुटेशन अलावेंस ऑप्ट कर रहा है, ठीक है। सो क्या लग रहा है, FR22 केवल मैंने लिखा है, डेपुटेशन अलावेंस वाला फॉर्मेट लग रहा है यहाँ पे, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या FR22(1)A1 यहाँ अप्लाई हो रहा है बिकॉज नेशनल इंक्रीमेंट मिल रहा है, ठीक है, एंड DNI ऑप्शन एक्सरसाइज वो कर ही नहीं सकता है। सो यहाँ स्टेज 8 से स्टेज 9 में हम ले गए, स्टेज 9 में ले जाने के बाद बिफोर प्रमोशन, स्टेज 9 में ले जाने के बाद डेट ऑफ प्रमोशन जो, सॉरी डेट ऑफ प्रमोशन ये मूविंग टू द न्यू पोस्ट कहेंगे इसको, मूविंग टू द न्यू पोस्ट पे जाने के बाद सिंपली हमने उसका डेपुटेशन अलावेंस फिक्स किया, यानी ये अमाउंट को यहां पे लिखा, और चूंकि स्टेशन चेंज हुआ था सो 10% ऑफ दिस विल बी फिक्स एट डेपुटेशन अलावेंस। यहां पे हम देखेंगे कि डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, बिकॉज यहाँ पे डेपुटेशन अलावेंस वो ऑप्ट कर रहा है, सो डेट उसको जो भी इंक्रीमेंट मिलेगा अपने ओल्ड लेवल पे ही मिल रहा है, यानी कि ओल्ड पे ही मिल रहा है, ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन में ही मिल रहा है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में मिल रहा है। सो उसका DNI पैटर्न जो है सेम है, DMNI पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है, 1 जनवरी का 1 जनवरी ही है, 1 साल के बाद उसका अगला लग रहा है, ये तो कैरी हो रहा है, अगला लग रहा है। अब नेक्स्ट DNI यानी 1 जनवरी 25 को क्या होगा, उसको दैट इज स्टेज 10, उसको स्टेज 9 से स्टेज 10 पे तो लेकर के आएंगे, ये पे तो बदलेगा लेकिन दिस डेपुटेशन अलावेंस विल नॉट चेंज। जो मैंने पहले कहा था कि हर इंक्रीमेंट के बाद ये डेपुटेशन अलावेंस चेंज नहीं होगा,
यदि वो डेपुटेशन पे 5 इयर्स के लिए है, जो कि यूजुअली होता है 3+2, 5 इयर्स के लिए अगर वो डेपुटेशन पे है, तो फॉर दिस 5 ईयर हिज डेपुटेशन अलाउंस विल बी 7,110। इंक्रीमेंट उसको एवरी ईयर लगता जाए, चला जाएगा, यहाँ 9 था, यहाँ 10 हो गया, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, लेकिन ये अमाउंट चेंज नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल देयर इज सम स्ट्रक्चरल चेंज इन द पेरेंट डिपार्टमेंट। इसके बाद द नेक्स्ट वन इज परफॉर्मा प्रमोशन। परफॉर्मा प्रमोशन क्या होता है? इफ अ पर्सन in organization A joins organization B on deputation or foreign service, दोनों केस में एक चीज समझें, डेपुटेशन एंड फॉरेन सर्विस में क्या फर्क है। इन जनरल डेपुटेशन के केस में सोर्स ऑफ फंड जो होता है दोनों ऑर्गेनाइजेशन का, ए और बी का सेम होता है। अनकंसेप्चुअली इस केस में लीव सैलरी पेंशन कंट्रीब्यूशन, बिकॉज फंडिंग सोर्स सेम है, वो एक्चुअली ट्रांसफर नहीं होता है, केवल अकाउंट ट्रांसफर होता है, जो कि फॉरेन सर्विस में ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है कोई यदि सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी पब्लिक सेक्टर में मूव कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन अब्रोड किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है, ये सारे के सारे फॉरेन सर्विस के एग्जांपल्स हैं। वहां लीव सैलरी एंड पेंशन कंट्रीब्यूशन उसका आएगा। लेकिन यदि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट कर रहा है, तो वहां लीव सैलरी पेंशन कंट्रीब्यूशन आने की जरूरत नहीं है, सिंपली अकाउंट एडजस्टमेंट होता है। ये ए से बी पर अगर वो आदमी मूव कर रहा है एंड व्हाइल ही इज ऑन डेपुटेशन इन ऑर्गेनाइजेशन बी, यहां पे उसका प्रमोशन ड्यू हो तो क्या होगा? 3 सर्कमस्टांसेस देखिए यहां राइज कर रहा है। या तो उसको कहा जाएगा एंड योर डेपुटेशन एंड रिटर्न बैक एंड अवेल प्रमोशन। दूसरा कहा जाएगा कि नहीं भाई, हम तुमको यहां प्रमोशन दे देते हैं, यू कंटिन्यू वर्किंग देयर, लेकिन जब आओगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। तीसरा मतलब यू फॉरगो प्रमोशन। तीसरा उसको कहा जा रहा है कि नहीं, हम आपको प्रमोशन दे रहे हैं, इसका करस्पॉन्डिंग बेनिफिट आपको दूसरे डिपार्टमेंट में जहां डेपुटेशन पे गए हैं मिल रहा है, व्हेन यू विल बी बैक यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ द प्रमोशन। तो ये जो तीसरा कंडीशन है, ये तीसरा कंडीशन कहलाता है परफॉर्मा प्रमोशन। यानी आपका रियल प्रमोशन नहीं हो रहा है, आपको वहां पे प्रमोशन मिल जा रहा है एंड फाइनेंशियल बेनिफिट सेम डेट ऑफ प्रमोशन से ही ऑर्गेनाइजेशन बी में मिलने लग रही है, चाहे वो डियरनेस अलाउंस के रूप में हो या इंक्रीज इन डियरनेस पे के रूप में। जब आप बैक होते हैं तब क्या होता है? जब आप वहां होते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका पोस्ट यहां खाली रहता है, आपके उस प्रमोशनल पोस्ट पे आपके नेक्स्ट जूनियर को प्रमोट कर दिया जाता है, और उसके बाद हो सकता है कि 3 साल के दौरान और पोस्ट खाली हो, जूनियर 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 प्रमोट होते चले जा रहे हैं। लेकिन द डे यू विल बी बैक, तो जो पहली वैकेंसी अराइज करेगी उसमें आपका ही प्रमोशन होगा, एंड दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट बिलो रूल। व्हेन यू कम बैक against the next vacancy you will be promoted, and after this promotion you will be placed above all your juniors। जितने जूनियर्स का प्रमोशन हो चुका है उसके ऊपर आपका प्लेसमेंट होगा। सो यू रीगेन योर सीनियरिटी। फाइनेंशियल बेनिफिट तो आपको उसी समय मिल रही थी, आपने सीनियरिटी भी अवेल कर लिया। इसको कहते हैं परफॉर्मा प्रमोशन। एंड जब आप अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, जब आपको फाइनेंशियल बेनिफिट मिल गई पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो पे फिक्स हुआ, मैंने प्रिजम्पटिव पे के डेफिनेशन में बताया था सेशन 1 में, दिस इज द पे which is presumed to be drawn by a person if he was working on that position। यहां पे उसका प्रमोशन हुआ लेकिन यहां वो काम नहीं कर रहा। अगर वो यहां काम कर रहा होता तो उसका कितना पे यहां प्रिज्यूम किया जाता है, वो उसका प्रिजम्पटिव पे होता है। तो ये प्रिजम्पटिव पे डिसाइड किया जाता है और इसी प्रिजम्पटिव पे को प्रोटेक्ट किया जाता है उसके ऑप्शन के हिसाब से, डेपुटेशन पे या डेपुटेशन अलाउंस पे। अब हम एग्जाम्पल से इसको देख रहे हैं ये कैसे होता है। जस्ट 2 एग्जाम्पल है। A government service drawing this much pay in pay level 10 joined another organization in pay level 11 on this date,
His DNI in the parent organization is, id नहीं है, is this date. He got performer promotion, उसको performer promotion दिया गया parent organization में on this date. Fix his pay if he opts for deputation pay, if he opts for deputation allowance. तो सबसे पहले देखते हैं deputation pay के में परफॉर्मा प्रमोशन मिलने में अगर उसको नहीं मिलता तो क्या होता, पहले ये हम देख रहे हैं. डेपुटेशन का केस है, रेस्पॉन्सिबिलिटी हायर है, 10 से 11 में गया है. सो FR22(1)(A)(1) में फिक्स होगा, DNI एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है. बिफोर प्रमोशन स्टेज 10 में था. ठीक है. बिफोर प्रमोशन, परफॉर्मा प्रमोशन मिलने से पहले वो स्टेज 10 में था. ठीक है. नोशनल इंक्रीमेंट के साथ उसका पे फिक्स किया गया. ठीक है. जिस दिन उसने ज्वाइन किया वहां पे नोशनल इंक्रीमेंट के साथ पे फिक्स किया गया. DNI उसका ये था. एक इंक्रीमेंट के बाद ये उसका पे फिक्सेशन हुआ नोशनल इंक्रीमेंट के साथ पे लेवल 11 में. ठीक है. एक नोशनल इंक्रीमेंट दिया गया पे लेवल 11 में. हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी होने के कारण यहाँ पे उसका पे फिक्स किया गया और ये 71,000 रुपीज यहाँ था. ठीक है. दिस इज 71,800 रुपीज. तो यहाँ पे फिक्स किया गया. अब हम इफेक्टिव डेट को आते हैं. ये अक्टूबर 21 का केस है. 1 जुलाई को उसका नेक्स्ट DNI ड्यू हो रहा है. इसके 6 मंथ्स के बाद में 1 जुलाई को उसको एक इंक्रीमेंट मिल गया. स्टेज 3 से स्टेज 4 में आ गया, पे लेवल 11 में. फिर एक साल के बाद उसको सेकेंड इंक्रीमेंट मिल गया बिकॉज उसका प्रमोशन जो होना है अक्टूबर में होना है. अगला इंक्रीमेंट जुलाई में लग गया. सो वो 76,200 रुपीज पे आया. ठीक है. 76,200 रुपीज पे आया. तो ये हालत होती यदि उसका प्रमोशन नहीं हो रहा होता तो 1 अक्टूबर को भी वो 76,200 रुपीज ही पा रहा होता, कोई फर्क नहीं होता. लेकिन अब जो क्या हुआ है उसका वहां पे प्रमोशन हो गया है. सो सबसे पहले हम उसका प्रिजम्पटिव पे कैलकुलेट करेंगे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है. ये मैंने एग्जांपल दिया, अगर प्रमोशन नहीं हो रहा होता तो कितना मिल रहा होता. अब उसका प्रमोशन हो रहा है. जब वो प्रमोशन हो रहा है, ये प्रमोशन नहीं है, ये कहिए बिफोर ज्वाइनिंग द न्यू पोस्ट है. बिफोर ज्वाइनिंग द न्यू पोस्ट है. अब अगर उसका प्रमोशन हो रहा है तो देखिए क्या होगा. इन दैट केस बिफोर ज्वाइनिंग टू द न्यू पोस्ट, दिस इज ज्वाइनिंग टू द न्यू पोस्ट, 69,000 रुपीज स्टेज 8 पे वो पा रहा था. एक इंक्रीमेंट लगा बिकॉज हमको उस डेट तक आना है. एक इंक्रीमेंट लगा ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन में, स्टेज 9 पे आया. फिर एक इंक्रीमेंट लगा स्टेज 10 पे आया 1 जनवरी 23. सो जिस दिन उसका प्रमोशन हुआ 21 अक्टूबर 23, अगेन ही वाज ड्रॉइंग द सेम अमाउंट. चूंकि प्रमोशन हुआ था इसलिए उसको वहीं पे एक नोशनल इंक्रीमेंट मिला. ठीक है. वहीं पे एक नोशनल इंक्रीमेंट मिला और ये नोशनल इंक्रीमेंट मिलने के बाद इस डेट को पे लेवल 11 में यानी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन में या डेपुटेशन वाले पोस्ट वाले ऑर्गेनाइजेशन में उसका पे फिर से फिक्स हुआ. पे लेवल 11 में जाके फिक्स हुआ. ठीक है. रिफिक्सेशन के बाद उसका पे यहाँ पे जाके फिक्स हुआ. ये मैंने स्टोरी फॉर्म में लिखा है. डेपुटेशन या परफॉर्मा प्रमोशन का है. ठीक है. हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, तो नहीं. इस दिन जो उसका रिफिक्सेशन हुआ अपने ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन में, तो देखिए पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हो रहा है. ये तो ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन का फिक्सेशन है. पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में देखिए पे लेवल 11 से जो डेपुटेशन पोस्ट या फॉरेन सर्विस वाला जो पोस्ट था उसका भी पे लेवल 11 था. सो देयर वाज नो चेंज इन रेस्पॉन्सिबिलिटी. सो FR22(1)(2) में फिक्स हुआ और FR22(1)(2) में भी पे लेवल 11 ही था. यानी ये स्टेज वहां भी एग्जिस्ट कर रहा था, वो उसी स्टेज पे रह गया. DNI अगेन उसका DNI यहाँ पे फिक्स होने के बाद 6 मंथ के बाद वाला DNI उसका लगा और उसका DNI 1 जुलाई 24. तो इस तरह से डेपुटेशन पे के केस में उसका पे फिक्स हुआ. अब हम देखते हैं डेपुटेशन अलावेंस के केस. डेपुटेशन अलावेंस के केस में डेपुटेशन पे है वो आदमी, रेस्पॉन्सिबिलिटी हायर है, FR22(1)(A)(1) पे फिक्स होगा. लेकिन डेपुटेशन अलावेंस का केस है, DNI एप्लीकेबल नहीं. डेपुटेशन अलावेंस का केस. सो on the date of moving to the new organization, not promotion, on the date of moving to the new organization,
69,000 वो पा रहा था, एक नोशनल इंक्रीमेंट लगा, डेपुटेशन अलावेंस उसका इसका 10% फिक्स हो गया। अब उसके बाद पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में स्टेज 8 से वो स्टेज 9 में आया, स्टेज 9 से वो स्टेज 10 में आया, स्टेज 10 से वो उस डेट में आया जिस डेट को कि उसका परफॉर्मा प्रमोशन हो रहा था, एंड ऑन दैट डे हिज पे वाज 72,200 रुपीज। 72,200 रुपीज। अब ये देखिए, नोशनल इंक्रीमेंट के साथ तो उसी दिन उसको मिल गया था, लेकिन जब हम स्टेट काउंट कर रहे हैं तो ये कंटिन्यूटी में है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। परफॉर्मा प्रमोशन के लिए जब हम काउंट कर रहे हैं तो ये स्टेट मूव कर रहा है, स्टेज लेवल 8 to 9 to 10 ऑन द सेम पैटर्न। अब ये 10 में जब यहाँ 11 पे आया तो डेट ऑफ परफॉर्मा प्रमोशन दिस वाज 72,200 रुपीज। यहाँ पे उसको एक नोशनल इंक्रीमेंट मिला और ये हो गया स्टेज 12। 11 नहीं होगा, स्टेज 12, दिस विल ऑल्सो बी स्टेज 12, ये स्टेज 12 हो गया। एंड इसका न्यू डेपुटेशन अलाउंस दिस इज नाउ 10% of this. So on refixation, his pay will be 75,200 rupees in pay level 10। मैंने पहले भी कहा था डेपुटेशन अलावेंस में ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन का यानी पेरेंट कैडर का ही पे लेवल लगा हुआ रहता है। सो पे लेवल 10 एंड यहाँ पे ही उसको परफॉर्म उसका सॉरी इसका पे लेवल 11 हो जा रहा है और उसका 10% उसको यहाँ पे मिलना शुरू हो जा रहा है, 10% यहाँ पे मिलना शुरू हो जा रहा है। सो इन दैट पैटर्न हिज पे विल बी फिक्स्ड। सो ये टोटल प्रेजेंटेशन था आज के लिए, और आई होप कि इसमें आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर कोई पोर्शन रिमेनिंग रह गया है तो जस्ट पोस्ट मी द क्वेरी, आई विल रिप्लाई इट बैक। बहुत जल्दी मैं इसका थर्ड सेशन पोस्ट करूंगा जिसमें कि री एम्प्लॉयड पेंशनर्स का पे कैसे फिक्स होता है, दैट आई विल प्रेजेंट। थैंक यू वेरी मच।